Namaskar, welcome to all of you in my today's session of class 6. After the completion of chapter 1, I gave you some work relevant to the making of question and answer, making notes, etc. and etc. I hope that you completed your task, and if no, then kindly make it sure that you have to complete it. समय और सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती हैं. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नम. पढ़ाई जारी रहे. आपको दौड़ना है. यू हैव टू रन विथ मी. एक दौड़ है. पढ़ाई एक दौड़ है. दौड़ के सिवा कुछ भी नहीं. सो इफ आई एम वर्किंग हार्ड देन यू हैव टू वर्क हार्ड विदाउट एनी डाउट. पहला चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा, व्हाट वी कंप्लीटेड चैप्टर 1, अर्थ एंड सोलर सिस्टम, इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट अर्थ, वी डिस्कस्ड अबाउट द फीचर ऑफ अर्थ, वी डिस्कस्ड अबाउट द पोजीशन ऑफ अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, वी डिस्कस्ड अबाउट द satellite of earth which is known as moon, etc. and etc. Actually this one was my brush up sheet. Now I am moving toward the next chapter, chapter 2, the globe. Now the question from my side, that what is globe? Globe है क्या? कैसे समझे ग्लोब को? एक लाइन and no one is capable to cut, or no one is capable to have a doubt over your concept. Globe is nothing but a replica of earth. याद रख लो. उम्मीद करते हैं कहीं ये लाइन लिखा हुआ नहीं मिलेगा. Globe is nothing a replica of earth. एक प्रतिरूप है. ग्लोब जो है पृथ्वी का एक प्रतिरूप है. प्रतिरूप मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. आप देखते होंगे ना, क्रिकेटर हैं मेरे. हर घर में धोनी है, विराट कोहली हैं. अभी कोहली का दौर है, धोनी का चला गया. तो आप सुनते होंगे कि वर्ल्ड कप के रेप्लिका का अनावरण हुआ. बिल्कुल वैसा ही. अब पृथ्वी को तो जेब में लेकर घूम नहीं सकते, तो आखिर समझेंगे कैसे? How we can understand about the location of the continent and ocean and sea, etc. and etc. It is not possible for us to carry earth in our pocket or in our room. So instead of carrying the earth, we are trying to carry the globe, and with the help of globe easily we can understand about our earth. So first thing that should be very clear, that the representation of earth in its manner. ग्लोब बिल्कुल धरती के आकार का होता है. बिल्कुल उसके ऊपर जो नक्शा बनता है, whatever the map is present on the surface of the globe, is just similar to the position of continents, oceans, seas, etc. and etc. what is present over the earth. अब सवाल आता है कि बिल्कुल सही बात है. ओके, इजीली वी कैन अंडरस्टैंड दैट द ग्लोब इज अ रेप्लिका ऑफ अर्थ, बट इन अनदर टर्म वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो, दैट it's also not true that all the globes whatever are present in the market is having the same size. वो एक आकार के नहीं होते, कई आकार के होते हैं. So usually the globe which fulfills the condition or the representation over itself to represent earth is majorly of 3 types. First one, जो ग्लोब है, इस चीज़ को समझना है कि on the basis of size, on the basis of size,
3 टाइप्स के होते हैं, और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द ग्लोब्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहला बिग ग्लोब्स, दूसरा स्मॉल ग्लोब्स, और तीसरा ग्लोब लाइक बैलून। द बिग ग्लोब्स आर सच काइंड ऑफ ग्लोब्स which cannot be carried easily, जिसको आसानी से लेकर घूम नहीं सकते हैं। बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिरूप, काफी बड़ा, बहुत मुश्किल है उसको कैरी करना। तो वैसी आकृति जो पृथ्वी का प्रतिरूप हो और आकार में काफी बड़ी हो, जिसको कि आसानी से आप लेकर घूम नहीं सकते हैं, that globes are an example of big globes. Now the second one is small globes. A small globes means which are pocket globes but not very informative. कैसे होगा informative? How is it possible? No. जब चीज़ें बहुत छोटी हो जाएंगी तो informative रहेंगी नहीं। वो I am hopeful that whenever you will visit to your office, your school office chamber, you will see, or any other places, wherever you can go, you will go. You will see like a paperweight, kind of paperweight, or some a small pen stand like that. उसमें भी आपको ग्लोब दिखेगा। अब वो तो इंफॉर्मेटिव कैसे होगा? काफ़ी छोटा है, उसमें तमाम आंकड़े तो होंगे नहीं। तो तीसरा ग्लोब लाइक बैलून्स, ग्लोब लाइक बैलून्स, इसकी बात आती है। एंड दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव, दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। अब आप पूछिएगा, थोड़ा ग्लोब लाने चले गए थे, अब आप पूछोगे कि भाई ग्लोब लाइक बैलून्स मतलब एक सेकंड, इतना बड़ा भी नहीं, इतना छोटा भी नहीं, इतना छोटा भी, लाइक टेनिस बॉल, कुछ बड़ा लेकिन इजीली कैरेबल हो, जिसमें हम समझ सकें। तो आपको इस तरह की आकृति के भी ग्लोब मिलते होंगे। दैट वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोब लाइक बैलून्स। अब बोलो मिलता है कि नहीं? अब इसी के ऊपर अगर पृथ्वी का स्टिकर, जो अर्थ सरफेस इंफॉर्मेशन है, अगर वो साट दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, स्टिक कर दिया जाए, तो चीज़ें थोड़ी समझने में आसान हो जाएंगी ड्यू टू इट्स परफेक्ट साइज, ड्यू टू इट्स परफेक्ट साइज। और सामान्यतः इसी प्रकार की आकृति की ग्लोब टीचर्स यूज़ करते हैं टू एक्सप्लेन स्टूडेंट्स। ये तो हुआ ग्लोब के टाइप्स की बात। ये क्या हुआ? ग्लोब के टाइप्स की बात। अब एक चीज़ तो है, अब इसमें कुछ चीज़ें इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आप देखो, ऑन द टॉप एंड एट द बॉटम, आई एम जस्ट पुटिंग माई फिंगर, इट मीन्स लाइक दिस वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सिस ऑफ ग्लोब। ये एक्सिस ऑफ ग्लोब का एक उदाहरण है जिस पर यह चक्कर लगा रहा है, तभी तो हम समझेंगे ना ग्लोब को। तो यही एक्सिस है जो ऊपर और नीचे जो आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर से नीचे जिसके आधार पे यह ग्लोब घूम रहा है, ये बैलून घूम रहा है, दिस वन इज नोन एज एक्सिस ऑफ ग्लोब, दिस वन इज नोन एज एक्सिस ऑफ ग्लोब। तुम लोगों को समझाने का ना इससे अच्छा साधन हो ही नहीं सकता है। जब चीज़ों को तुम एकदम प्रैक्टिकल वे में देखोगे ना, देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट व्हाट टीचर्स आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल है दूसरा चीज जो ग्लोब के माध्यम से आप समझते हैं। आप जब ग्लोब को देखेंगे इस तरह के, तो आप पाएंगे कि वो बिल्कुल एक्सिस ऐसे करके, मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस नहीं रहता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस नहीं रहता है।
वो हल्का टिल्ड होता है। हल्का क्या होता है? टिल्ड होता है। एक्चुअली दिस वन इज हैविंग और दिस वन इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन a concept that earth is also inclined with respect to its axis। पृथ्वी भी अपने अक्ष पर झुका होता है, अर्थात ऐसा नहीं है कि अगर यह सूर्य है की परिक्रमा हो रही है, सूर्य है, तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी बिल्कुल परपेंडिकुलर अपने एक्सिस पर रहता है। एक्चुअली दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग। वो अपने एक्सिस पर झुका रहता है, वो अपने एक्सिस पर झुका रहता है, लिटिल बिट टिल्ट। एंड द एंगल्स, आई विल गिव यू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंक्लिनेशन एंगल, वो मैं आगे आपको दूंगा। सबसे जो बड़ी बात है, व्हाट यू हैव टू नो दैट जो ये एंगल होता है, यह जो एंगल जो टिल्ड होता है, वह नॉन अदर देन, जस्ट वेट फॉर, नॉन अदर देन वो 66.5 डिग्री झुका होता है। कितना डिग्री झुका होता है? 66.5 डिग्री। It is inclined at an angle of 66.5 degree. It is inclined at an angle of 66.5 degree. You have to keep it in your mind. आपको यह दिमाग में रख लेने की आवश्यकता। अब ग्लोब को ही लेकर समझो ताकि चीज़ समझ जाए। अब ये ग्लोब है, आप देख रहे हैं। आप मेरे इस जो बैलून है, जिसको मैं एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि एक लाइन है जो इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है, इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है। अब इस लाइन की भी चर्चा भी होगी, लेकिन उसके पहले जो इम्पोर्टेंट है, ये जो ऊपर और नीचे जो एक्सिस है, जो ऊपर और नीचे जो एक्सिस है जिस पर यह ग्लोब या अर्थ घूम रहा है, इसको ऊपर वाले को कहते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले को कहते हैं साउथ पोल। बाय द हेल्प ऑफ द पिक्चर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट इफ दिस वन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ एंड दिस वन इज इट्स एक्सिस लाइन, दिस वन इज एक्सिस लाइन, तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, जो ऊपर का पॉइंट है, जो पॉइंट ऊपर का है, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? साउथ पोल। याद रहेगा। और इसको क्या बोल दिया? एक्सिस लाइन। क्लियर? एम आई क्लियर टू यू? आप इजीली समझ सकते हैं कि जो एक्सिस जिस पर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, उत्तर के सुदूरतम बिंदु को, farthest point in the north will be considered as north pole and the southernmost part or point is known as south pole। तो अभी किस चीज़ की चर्चा हुई? ग्लोब की चर्चा हुई, नॉर्थ पोल की चर्चा हुई, साउथ पोल की चर्चा हुई और एक्सिस की चर्चा हुई। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आई होंगी। फिर अब हम लोग इक्वेटर एंड ऑल, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इन सभी चीज़ों की नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।